Hi everyone and welcome back. So as you all know that in the last class we have completed the lengthiest chapter of this session and the chapter was morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants, as we all know, it's a very lengthy chapter, very theoretical chapter, and that's the reason why we have to revise it again and again. क्योंकि morphology of flowering plants के अंदर बहुत सारी terminology है, बहुत सारे ऐसे statements हैं, बहुत सी definitions हैं जो कि आपको याद रखनी होती है और उसके लिए revision is the only key. And morphology of flowering plants, since we have completed the chapter, now we will be solving the PYQs from the year 2021. And as we all know that weightage की अगर हम बात करें इस chapter की, so approximately 2 questions you can expect from this particular chapter. So morphology of flowering plants, it's definitely an important chapter, but किड्स फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको नाम याद रखने हैं, बहुत सारे इसके अंदर डेफिनेशंस हैं, किस पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब होता है, ये सब कुछ याद रखने वाली चीज़ है. एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं ये थेरेटिकल है पूरे, दे आर वेरी लेंदी एंड थेरेटिकल, एंड क्वेश्चंस जिस तरह के बनते हैं इन चैप्टर्स में से दैट इज़ वेरी डायरेक्ट. बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं रहते हैं क्वेश्चंस. सो दैट्स द रीज़न व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिवाइज दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स कंटिन्यूसली. अगर हम अच्छे से रिवाइज करेंगे सो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू स्कोर गुड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स एज वेल. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द चैप्टर morphology of flowering plants. The chapter is actually quite important, and let's begin with the first question that's in front of us. Before we move to the question, let's see who all are present in the class. Before you send the answers, before that please send me a thumbs up. जल्दी से thumbs up send कर दीजिए so that I can see who all are there in the class only. कौन attentively answer करने वाले हैं. You all have to be attentive. 10 seconds आपको मिलेंगे हर question के लिए and within 10 seconds you have to answer. पैसिवली नहीं बैठना है किसी को भी क्लास में. everyone should send their answers in the chat. Even if you are not sure about the answer, you should tell me that you are confused or whatever problem you are facing. At least I should get to know that what you are actually doing in the class. So that is what my expectation is from all of you, and as I can see most of you are present in the class, attending the class actively. So without any delay आ जाते हैं first question पे, that is diadelphous stamens are found in 2021 का क्वेश्चन है and the options are in front of us, that is China rose, citrus, pea, China rose and citrus. These are actually the options and you have to tell diadelphous stamens इसमें से किसके अंदर देखने को मिलते हैं. And that I can see over here that most of kids have already sent the answer. बहुत सारे बच्चों ने already answer send कर दिए हैं. Diadelphous stamens, they are found in, that's the question, and we all know कि diadelphous stamens जो होते हैं वो किस में मिलते हैं. Okay, that's great. Most of you remember this thing, diadelphous stamen. First of all, what are diadelphous stamen? What do we mean by diadelphous stamen? Diadelphous stamen are those stamens जिसके अंदर filaments they are attached to each other in 2 bundles. 2 bundles में filaments attached होते हैं stamen के. That is what we call as diadelphous. And all of you remember that pea के अंदर there is diadelphous stamens which are found there. 9 stamen separate, 1 stamen अलग होता है. That means 2 bundles are formed. Filaments, they are actually fused. That kind of stamen is called as diadelphous. So correct answer has to be P. बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, that is P. Then coming towards the next question. अब आपको यहाँ क्या करना है, मैच करना है. आपको फ्लोरल फॉर्मूले दिए हैं यहाँ पर कुछ फैमिलीज के. You have to match them with the correct family. Here they have written families. Here they have written the floral formulae, and you have to match the column. So as we already know, as we can see here, that जो फ्लोरल फॉर्मूले हैं सीधे हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं फॉर ऑल दीज फैमिलीज. बस आपको वही मैच करना है. 2021 में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. अगर आपने फ्लोरल फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं, अगर आपने डायग्राम्स अच्छे से देखे हैं, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. एंड लेट मी सी हु ऑल आर आंसरिंग व्हाट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ आंसर इज कॉमन. मेजॉरिटी आंसर जो आ रहा है वो कॉमन है इस क्वेश्चन के लिए. एंड एज आई कैन सी that mostly kids are answering
Yes, definitely correct. So now let's see क्या मैच होना चाहिए यहाँ पर. First of all, you can see this particular floral formula. यहाँ से ही आपको आइडिया लग जाएगा that which particular family it is. Here they have given you diadelphous stamen है. Okay, देखो 9 जो है वो आपस में fused है stamen, that means उसके filaments, और 1 is separate. अभी जो हम बात कर रहे थे उसी का यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला में अगर ये चीज आपको याद है, यू कैन आंसर दिस वेरी इजीली. ओके, सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज एक्चुअली फाउंड इन योर फैबेसी फैमिली. Okay, so 3 के सामने we will write A over here. As you can see, zygomorphic flower is there, zygomorphic flower है, और bisexual flower is there. Then apart from that जो आपका calyx है, that is 5 and that is fused here. Then you can see here corolla 1 plus 2 plus 2 they are fused. Okay, so ये actual में आपकी zygomorphic flower की condition है. And then आपका जो stamen है that is diadelphous, और gynoecium is there which is superior and 1 only. So that condition is there. ये floral formula दिया है, और ये floral formula happens to be of Fabaceae family. Fabaceae का ही है which has to be the match here. और A के सामने 3 as we can say एक ही ऑप्शन में दिया है, so यही से हमारा आंसर आएगा, but still we should match it. So जो next floral formula है, this floral formula as you can identify this, इसमें देखो आपका जो corolla है उससे एंड्रोशियम फ्यूज्ड है. ओके, दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज फाउंड हियर, और ये होता है आपकी सोलेनेसी के अंदर. सो वी विल राइट बी ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ 4, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सी दिस कंडीशन. Okay, here you can see, very important to remember, here they have written P. You all remember P is perianth, calyx corolla fused, that means it is a perianth condition, और उसमें भी आपका एंड्रोशियम का फ्यूजन है उसके साथ में. so that is why ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है perianth किसके अंदर मिलता है, that you all should remember, that is the characteristic of liliaceae. लिली के जो फ्लावर्स है सबको याद होना चाहिए that उसमें perianth कंडीशन होती है, that means calyx corolla सेपरेट हमें नहीं देखने को मिलता है. so that's why यहाँ पर C. and then lastly this floral formula as you can see here, that is from Brassicaceae family. so ये हमारा करेक्ट मैच होगा, and 1 has to be the right answer. बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर पहले ही 1 आंसर दे दिया था, इसीलिए जल्दी आंसर आ गया होगा, क्योंकि इसे देखते ही हम समझ गए थे that this is Fabaceae. that's why एक ही ऑप्शन में था, so correct answer is 1. lightning fast speed से आंसर्स आए थे इस क्वेश्चन के लिए, so 1 is definitely true. and coming to the next question, from the year, the question is from the year 2020, the roots that originate from the base of stem are, जो बेस ऑफ स्टेम से रूट्स ओरिजिनेट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं. ओके, दैट यू हैव टू टेल. फाइब्रस रूट्स, प्राइमरी रूट्स, प्रॉप रूट्स, या फिर लेटरल रूट्स. दीज आर द ऑप्शंस एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर फॉर दोज रूट्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. एंड लेट मी सी हु ऑल रिमेंबर दिस थिंग. यस, रिसेंटली पढ़ा है हमने, बहुत ही रिसेंटली वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स. So that's why you have to be answering the correct one. All right. Yes, Gaurav, we are actually solving PYQs from morphology of flowering plants, and if you have missed any of the topics, अगर किसी लेक्चर में आप एब्सेंट थे, सो प्लीज़ रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, क्योंकि हम अभी PYQs सॉल्व कर रहे हैं, आपको भी पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर. Okay, yes Rishabh, I can definitely see your answer. ऑल राइट, सो आपसे बात चल रही है यहाँ पर कि बेस ऑफ स्टेम से कौन ओरिजिनेट होता है. एंड वी ऑल नो दैट फाइब्रस रूट्स आर द वंस विच ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम. दैट मीन्स आपके जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में देयर इज अ प्राइमरी रूट, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, उसकी जगह पर बहुत सारे फाइब्रस रूट्स आर फॉर्म लाइक दिस. बेस ऑफ द स्टेम से इस तरह की फाइब्रस रूट्स इमर्ज हो जाती है, एंड दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट्स. सो ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर. ए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट. फ्यूनिकल पर जो बॉडी होती है ओव्यूल की, वेयर इज दैट फ्यूज्ड? हाइलम, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, चेलेजा. दीज आर द ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट. That's the question. And as we can see here, yes, mostly the answers that I am receiving here, they are definitely correct. अभी तक मोस्टली आंसर सही आए हैं. आपको ये डायग्राम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम अपने ओव्यूल का.
that you have to remember, everyone must remember this particular diagram of ovule. आपसे पूछा है ovule का fusion funicle के साथ कहाँ पर होता है. We all should remember that particular point is हाइलम. सो दैट्स वाई ए हैज टू बी द राइट आंसर. जिसे भी ये डायग्राम याद था उन्होंने बहुत ही करेक्ट, बहुत ही जल्दी आंसर कर दिया इसका. इफ देयर वॉज सम कंफ्यूजन सो दोज किड्स विल नॉट बी एबल टू आंसर अगर आपने प्रॉपरली डायग्राम्स नहीं देखे. सो एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी के टेबल्स, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्कोर 320 प्लस. यहाँ पर क्लास में हर एक बच्चे का टारगेट क्या है, बायो में 320 प्लस. तो हर किसी को दैट इज द बेयर मिनिमम दैट वी हैव टू गेट इन बायोलॉजी. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक दोज एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड ऑल्सो. आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे. ओके सो अब आपसे पूछा जा रहा है रे फ्लोरेट्स. रे फ्लोरेट्स के अंदर क्या, रे फ्लोरेट्स हैव इंफीरियर ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस या फिर हाफ इंफीरियर ओवरी. व्हाट इज फाउंड इन रे फ्लोरेट्स, दैट इज द क्वेश्चन हियर. Okay, and you have to select the right option for this particular question. Ray florets, what kind of ovary they have? Inferior, superior, hypogynous, half inferior. What do you think should be the right answer? All right, so as I can see here, yes, definitely. That's true. Yes, your answer is definitely correct, Shrishti, as I can see here. सभी के आंसर्स देखो, जब भी आप आंसर्स भेजते हो तो मैं एक्चुअल में आई रीड एवरी वंस आंसर. सभी के आंसर्स मैं रीड करती हूँ एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू बी अटेंटिव. आई ऑल्सो गेट टू नो जब कोई क्लास में से गायब होता है बीच में बच्चा, वो भी मुझे बिल्कुल पता चल जाता है. सो दैट इज़ वाई आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है क्लास के अंदर. ओके सो रे फ्लोरेट्स के अंदर क्या होता है, एज आई कैन सी हियर मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड दैट रे फ्लोरेट्स के अंदर होती है इंफीरियर ओवरी, विच इज़ डेफिनेटली ट्रू. इंफीरियर ओवरी इज देयर, बिल्कुल सही है ये बात. दैट इज रे फ्लोरेट्स दे हैव इंफीरियर ओवरी. ए हैज टू बी द राइट आंसर. बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. सो दैट्स व्हाई मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इज. फिर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाफ इंफीरियर ओवरी किसके अंदर होती है? ब्रिंजल, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड प्लम. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट हाफ इंफीरियर ओवरी? एंड हाफ इंफीरियर ओवरी, एज आई कैन सी हियर, that mostly answers that I am receiving they are correct. Half inferior ovary के बारे में सभी को याद है, half inferior ovary is found in case of plum. Mostly जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है जवाब. Plum has got half inferior ovary. That is definitely true. Sunflower अभी हमने देखा, उसके अंदर there is actually inferior, so that is why plum has to be the right answer. Then 2019 का question, placentation in which ovules develop on inner wall of the ovary or in the peripheral part is. ऐसा प्लेसेंटेशन जिसमें कि ओव्यूल इनर वॉल ऑफ ओवरी या फिर पेरिफेरल पार्ट पे दैट इज डेवलप्ड, व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज दैट? दैट्स द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ अस. फ्री सेंट्रल, बेसल, एक्साइल या फिर पेराइटल. These are the options in front of us. Okay, and let's see what answers you have to give. Placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary. Let's see. Okay, या फिर peripheral part पे, that is the question. And as I can see here, all right, 5 more seconds for everyone else to answer. देखो सभी का आंसर आना चाहिए. There shouldn't be any students who will sit passively in the class. I don't want anyone to be sitting passively. Everyone has to actively answer. सभी को बिल्कुल actively यहाँ पर अपने अपने आंसर send करने हैं. That is what I am expecting from you all बच्चों. Be active here. Everyone has to send the answers. Okay. So as I can see here, mostly जो answers receive हो रहे हैं, they are definitely correct. Yes, we all know कि जो placentation है, placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary या फिर peripheral part पे, which is found, that is your free central होता है, बेसल होता है, एक्साइल होता है या फिर पेराइटल होता है. एंड बच्चे यहाँ पर मोस्टली कह रहे हैं दैट इट इज पेराइटल प्लेसेंटेशन एंड वी ऑल कैन अग्री विद दैट. पेराइटल प्लेसेंटेशन में वी नो दैट ओव्यूल्स जो है वो इनर वॉल पे
प्रोड्यूस होते हैं, या फिर इनर वॉल पे, या फिर पेरिफेरल साइड ऑफ द ओवरी पे. सो दैट इज व्हाई D has to be the right answer. This is the definition of parietal placentation actually. Okay, then coming to the next question. The next question in front of us is again from the year 2019 और question में हमसे पूछा गया है match the placental types column 1 with their examples in column 2. Column 1 basal, axile, parietal, free central. Column 2 mustard, china rose, dianthus, sunflower. These are the options in front of us and you have to select the correct answer from the following options here. Okay, and क्या क्या दिया हुआ है, they have given you these options. 4 options आपके सामने हैं और आपको मैच करना है placentation को. So placentation पे based actually there are quite a lot of questions which are asked. सो प्लेसेंटेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको उसके डायग्राम्स अच्छे से देखने हैं. यू शुड नो विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन विच फ्लावर्स, या फिर आपको उसके बारे में यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इट इज. सो ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेसेंटेशन और उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैच करना है. ओके, एंड लेट्स सी अभी तक कोई आंसर आया है या नहीं. बहुत सारे आंसर्स एक्चुअली रिसीव हो चुके हैं. मेनी किड्स हैव गिवन देयर आंसर्स. लास्ट 5 सेकेंड्स फॉर ऑल ऑफ यू. लास्ट 5 सेकेंड में सभी बच्चों को आंसर सेंड करना है बेटा. एवरीवन हैज टू बी एक्टिव हियर. ऑल राइट, सो एज वी ऑल नो, अगर हम बात करते हैं बेसल प्लेसेंटेशन की, बेसल प्लेसेंटेशन सभी को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज फाउंड इन सनफ्लावर. सो वी वुड राइट हियर इन फ्रंट ऑफ सनफ्लावर A, और A के सामने 4 हमारा एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज C. सो दैट्स वाई C हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा. बट स्टिल सबको मैच कर लेते हैं. सो एक्साइल प्लेसेंटेशन, एग्जाम्पल क्या है एक्साइल प्लेसेंटेशन का? चाइना रोज ओनली, तो B लिख देते हैं यहाँ पर. देन पेराइटल प्लेसेंटेशन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पेराइटल? दैट इज मस्टर्ड, सो C लिख देते हैं. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, इट इज फाउंड इन डायंथस. सो ये हो गए अपने एग्जांपल्स एंड दिस इज द करेक्ट मैच ओवर हियर. सो C हैज टू बी द राइट आंसर. C हम मार्क करके लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, एंड द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम द ईयर 2018. स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, adventitious root, taproot या फिर rhizome. What is sweet potato? That you have to tell here. That you have to select from the options. Sweet potato. Okay, and as I can see here, mostly the answers that I am receiving, they are correct. Lightning fast speed से आंसर्स आ रहे हैं. सभी को याद है स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन होता है? व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इट इज? स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ. कुछ मिक्स्ड आंसर्स भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. Sweet potato, you should not get confused in this. It is actually not a modification of stem. Sweet potato is a modification of adventitious root. That is what you have to remember. So B has to be the right answer. कुछ बच्चे जो कि confuse हो गए, please remember this thing. Sweet potato adventitious root का modification है. So B has to be the correct answer here. Then next question is from the year 2017. In bougainvillea, thorns are modifications of. बोगनविला के अंदर थॉर्न्स, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, स्टेम, लीफ या फिर स्टिप्यूल्स. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? दैट यू हैव टू सेलेक्ट. बोगनविलिया के अंदर थॉर्न्स, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ. ओके, and let's see what all you have to answer for this. Bougainvillea, thorns are modifications of. ऑल राइट, तो इसका आंसर अभी तक सभी ने कॉमन दिया है. एवरीवन कैन अग्री विद वन कॉमन आंसर, क्योंकि सभी को यहाँ पर याद है कि बोगनविला के जो थॉर्न्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है? दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. सो दैट्स वाई बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट हैं. ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड टिल नाउ दे आर वेरी डायरेक्ट, बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं है. लैंग्वेज भी बिल्कुल सीधी सीधी पूछ रहे हैं. सो दैट्स वाई यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर देम करेक्टली. देन अगला क्वेश्चन 2017 से क्या है? क्वेश्चन के अंदर कोकोनट फ्रूट इज अ बेरी है, नट है, कैप्सूल, ड्रूप. अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली एंड हम सभी को पता है कि जो कोकोनट है किसका एग्जाम्पल है? द कोकोनट इज द एग्जाम्पल ऑफ. yes, definitely. Many kids have answered. 5 more seconds for all of you to answer. बेटा सभी को आंसर देना है. कोकोनट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. Everyone has to remember this thing. Okay, coconut fruit is actually a drupe.
As we all can agree with this, coconut is an example of drupe. So D हम यहाँ पर मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट. फिर से कोकोनट पे क्वेश्चन है. जो हम खाते हैं या फिर जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं वो क्या होता है? कॉटिलिडॉन होता है, एंडोस्पर्म होता है, पेरिकार्प होता है, पेरिस्पर्म होता है. व्हाट इज दैट? वी ऑल नो दैट द पार्ट विच इज एडिबल इन कोकोनट, that liquid or the solid part that we eat in coconut, what is that? Yes, definitely. बिल्कुल भी इस पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है. हम सभी को पता है कि कोकोनट में जो पार्ट हम खाते हैं या फिर जो लिक्विड हम कंज्यूम करते हैं, that is its endosperm. वो उसका एंडोस्पर्म होता है. ओके, द लिक्विड एंडोस्पर्म और द सॉलिड एंडोस्पर्म इज द पार्ट दैट वी एक्चुअली कंज्यूम. ओके, इट इज द एडिबल पार्ट. सो दैट्स वाई बी हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एंड देन मूव हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज फ्रॉम द ईयर 2016. क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज. ऐसी मॉडिफिकेशन, स्टेम की मॉडिफिकेशन जिसके अंदर स्टेम फ्लैट और ग्रीन हो जाता है, लीफ का फंक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? फाइलोक्लेड्स, स्केल्स, क्लैडोड्स या फिर फाइलोड्स. व्हाट हैज टू बी द राइट आंसर? ऐसी स्टेम मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन फाइलोक्लेड एंड फाइलोड. These are two confusing terms, but you should not get confused. And as I can see, mostly the answers that I am receiving are actually correct. Stem modification, स्टेम का मॉडिफिकेशन इनटू फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर लीफ का ही फंक्शन परफॉर्म करने लगता है. क्या कहते हैं उसको? Everyone remembers here. मोस्टली यहाँ पर बच्चों ने सही आंसर दिया. कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो गए. मैंने कहा था डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू टर्म्स, बट स्टिल सम किड्स हैव गॉट कंफ्यूज. सो वी ऑल नो दैट स्टेम की मॉडिफिकेशन इनटू लीफ ग्रीन फ्लैट पार्ट that is what performs the function of leaves is what we call as phyloclades. उसे हम phyloclades कहते हैं, right? Phyloclade is the modification of stem. while आपका जो phylode होता है that is modification of petiole. जब petiole का ऐसा modification हो जाता है तो उसे हम phylode कहते हैं. while A has to be the right answer over here. so हम A select करके आ जाते हैं next question पे. from the year 2016 question में पूछा गया है the term polyadelphus is related to. polyadelphus term किससे related है? Gynoecium, Androecium, Corolla, Calyx. What is actually polyadelphus term related to? और everyone should remember, शुरुआत में ही हमने आज के सेशन के जो क्वेश्चन देखा था उसके बेसिस पर भी सभी को याद होना चाहिए. डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, ये टर्म्स किससे रिलेटेड है? फ्रॉम इन द वेरी बिगिनिंग वी हैड डिस्कस दिस एंड एज आई कैन सी मेनी किड्स एक्चुअली हैव आंसर्ड. बहुत ही फास्ट स्पीड से बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं एंड वी ऑल नो कि पॉलीएडल्फस टर्म्स जो है दैट इज रिलेटेड टू एंड्रोशियम. राइट, जब एंड्रोशियम के बंडल्स फॉर्म हो जाते हैं, फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं, तो उसे हम पॉलीएडल्फस कंडीशन कह सकते हैं. दैट इज रिलेटेड टू एंड्रोशियम. सो बी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन. इनमें से कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन. नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन. ठीक है बेटा. ऑप्शंस आर टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकम्बर, फ्लैटन स्ट्रक्चर्स ऑफ अपुंशिया, पिचर ऑफ निपेंथिस या फिर थॉर्न्स ऑफ सिट्रस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन? ये आपको यहाँ पर बताना है. स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या नहीं है? व्हेन वी वर स्टडिंग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एट दैट टाइम वी हैव एक्चुअली स्टडीड दिस ऑल्सो. सो यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस दैट स्टेम मॉडिफिकेशन इनमें से क्या क्या है और कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है. एंड फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई हैव रिसीव्ड मिक्स्ड आंसर्स. अभी तक मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं और ये तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मिक्स्ड आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मुझे लगा था सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर देंगे. सो इफ़ वी टॉक अबाउट स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल्स इनमें से क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं. जो क्यूकम्बर के टेंड्रिल्स हैं दे आर स्टेम मॉडिफिकेशन. एवरीवन शुड रिमेंबर दिस. Tendrils of cucumber, they are the example of stem modification. Okay, then flattened structure of opuntia, अभी हमने डिस्कस किया था. Phyloclade, that is a modification of stem. Okay, leaves का function perform करता है. Thorns of citrus, they are also stem modification only. Then pitcher of Nepenthes,
जो नेपेंथिस मतलब पिचर प्लांट का जो पिचर होता है, क्या वो स्टेम मॉडिफिकेशन है? नो, दैट इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, दैट इज एक्चुअली लीफ. So that's why C has to be the correct answer here. तो हम C मार्क करके let's move towards the next question in front of us. और question है 2016 का, पूछा गया है रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ. रेडियल सिमेट्री किस फ्लावर में मिलती है? ब्रेसिका, ट्राइफोलियम, पाइसम या फिर कैजिया. Which of the following has got radial symmetry? That is the question. Okay, so you have to select the right answer. Example याद होना चाहिए आपको. Radial symmetry किसके अंदर देखने को मिलती है? Which of the following has got radial symmetry? And as I can see, answers already आ गए हैं. See, बहुत सारे questions में जिसका आंसर A होता है, बहुत जल्दी आंसर आ जाते हैं, तुरंत आंसर्स आ जाते हैं विद इन 5 सेकेंड्स. कुछ बच्चे तो 2 सेकेंड के अंदर ही, डी ऑप्शन तक मैं पढ़ती हूँ उसके पहले ही आंसर्स आ जाते हैं. बट स्टिल यू शुड नो, हमेशा डी ऑप्शन तक पढ़ के ही आंसर देना है. भले ही आप कितने ही श्योर हो, यू आर 100% श्योर दैट ए इज करेक्ट, बट स्टिल यू हैव टू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन अप टू डी ऑप्शन. पढ़ लो एक बार बस, क्या जाता है पढ़ने में, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है दैट डी हैपन्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट. सो डी ऑप्शन तक पढ़े बिना आंसर नहीं मार्क करना है कभी भी. भले ही कितने भी एक्साइटेड हो गए, कितने भी खुश हो गए क्वेश्चन पढ़ के कि अरे वाह ए ही आंसर है, बट स्टिल डी आंसर पढ़ के ही डी ऑप्शन पढ़ के ही आंसर करना. ओके, सो एज आई कैन सी रेडियल सिमेट्री सभी को याद है. रेडियल सिमेट्री इज एक्चुअली फाउंड इन योर ब्रासिका. ओके, ब्रासिका में रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी सब में देयर इज बायलेटरल सिमेट्री. सो दैट्स व्हाई ए वी हैव टू सिलेक्ट हियर. ए को हम सिलेक्ट करके पहुंच जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन. 2016 का क्वेश्चन है बच्चों. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यू शुड बी नोइंग द डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट प्लेसेंटेशन. डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए. All these things are very very important here. Okay, so if they are asking you about free central placentation, so where is it found? Yes, as I can see here, free central placentation is found in the answers I am receiving. Mostly answers बिल्कुल correct हैं. Free central placentation का example सभी को याद है, that is dianthus. तो जब ऐसे example based questions आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा direct हैं, उसके अंदर कुछ भी discuss करने वाली ऐसी बात नहीं होती है. That's why. So the next question is here from the year 2016, and the question is, the standard petal of Papilionaceous corolla is also called as. ओके, जो स्टैंडर्ड पेटल होती है पैपिलियोनेशियस कोरोला की, उसे और क्या कहा जाता है? वेक्सिलम, कोरोना, कराइना या फिर पैपस. दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस. एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सभी को याद होना चाहिए स्टैंडर्ड पेटल. जो स्टैंडर्ड पेटल होती है, सबसे बड़ी वाली जो पेटल होती है अपने पैपिलियोनेशियस कोरोला की, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस largest standard petal as? What is the name that we use for the largest standard petal? That you have to tell here. And as I can see what answers you are sending. Okay, so everyone actually remembers this. जो largest standard petal होती है उसे हम कहते हैं vexillum. We call it as vexillum or standard also. So that's why A has to be the right answer. A हमारा बिल्कुल सही आंसर है. बहुत से बच्चों ने यही आंसर किया है. So A आंसर करके let's move towards the next question from the year 2016. क्वेश्चन में पूछा गया है कॉटिलिडॉन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड. जो मेज का कॉटिलिडॉन होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? कोलियोप्टाइल्स, क्यूटेलम, प्लूम्यूल या फिर कोलियोराइजा. इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपका मेज होता है इट इज अ मोनोकॉट. ओके, और मोनोकॉट के अंदर जो कॉटिलिडॉन होता है उसको हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं जो कि हमने डिस्कस की थी while we were discussing this chapter. At that time we had discussed that term and very good, very well done. As I can see most of the kids remember this term. एंड जब ऐसे आंसर्स आते हैं विदाउट एनी मल्टीपल आंसर्स, मोस्टली सबने एक ही आंसर किया है, सो इट एक्चुअली फील्स वेरी गुड बिकॉज यू ऑल रिमेंबर कि बात चल रही है यहाँ पर मेज ग्रेन की. कॉटिलिडॉन जो होता है मेज ग्रेन का उसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम. बी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है. सो हम बी सिलेक्ट करके बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2016 एंड क्वेश्चन में पूछा गया है ट्राई कार्पेल
capillary Syncarpus gynoecium is found in the flower of tricapillary and Syncarpus gynoecium, Fabaceae, Poaceae, Liliaceae या फिर Solanaceae. These are the options in front of us and the question is from the year 2016. 2016 का question है और आपको आंसर करना है इसके अंदर, that is tricapillary. Okay, चलिए, tricapillary Syncarpus gynoecium is found in the flower of, that's the question, and as I can see most of you do remember this. Tricapillary Syncarpus condition किसके अंदर होती है? This is what you have to remember, that is Liliaceae. Liliaceae family, it has got this kind of condition, so that's why C जितने भी बच्चों ने आंसर किया है that is definitely correct. Now moving towards the next question, फिर से floral formula based question है. Floral formula, floral diagram, placentation, then estivation, ये इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं which you should prepare well. So floral formula आपके सामने लिखा है, it is the this is the floral formula of, ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है? हमने शुरुआत में एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी दिस फ्लोरल फॉर्मूला was actually given and let's see who is able to identify this correctly, who can actually identify this. ओके, सो किसका फ्लोरल फॉर्मूला है ये, किस पर्टिकुलर फैमिली का? यू कैन सी हियर दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला एंड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड, देन आपके एंड्रोशियम 5 and corolla androecium fused, then gynoecium it is inferior to fused. So this is the characteristic feature of Solanaceae family and Petunia is the example from that, so that's why we have to select Petunia. Petunia बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है which is definitely true, correct. Then coming to the next question, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 2015 से है फिर से and क्वेश्चन में पूछा है the wheat grain has an embryo with one large shield shaped cotyledon known as, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मोनोकॉट्स के अंदर कॉटिलिडॉन होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? रिपीटेड क्वेश्चन बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन, यस इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन. सो वी ऑल नो कि जो हमारा कॉटिलिडॉन होता है मोनोकॉट्स में उसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं, अभी तो डिस्कस किया था. सो दैट्स व्हाई ए हैज टू बी द राइट आंसर. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. क्वेश्चन है रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, इनसिग्निफिकेंट रोल पूछा है बेटा. पी, व्हीट, सनफ्लावर, पिस्टिया, यू हैव टू टेल द इनसिग्निफिकेंट रोल. ओके, इनसिग्निफिकेंट रोल किसके अंदर रूट्स प्ले करती है आउट ऑफ दीज ऑप्शंस दैट यू हैव टू सिलेक्ट. ओके, so let's see what all you have to answer. Roots, they play insignificant role in absorption of water in. All right, so as I can see mostly जो answers receive हो रहे हैं they are actually correct. Yes, definitely true. हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है वैशाली. एंड आई ऑलवेज सी एवरी वंस रिस्पॉन्स, सभी के रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं. आई रीड एवरी वंस रिस्पॉन्स, एवरी सिंगल चाइल्ड व्हाट दे आर रिस्पॉन्डिंग, कब कौन गायब हो जाता है, कब कौन आंसर नहीं करता, सब कुछ यहाँ पर रजिस्टर होता है. सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास. ओके, सो रूट्स दे प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल. कहाँ पर रूट्स का इनसिग्निफिकेंट रोल होता है? दैट वी ऑल नो, दैट इज पिस्टिया. बिकॉज पिस्टिया जो है एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है तो उसके अंदर रूट्स का एज सच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में रोल नहीं होता है, बाकी सब टेरेस्ट्रियल है. पिस्टिया इज एक्वेटिक, सो दैट्स व्हाई पिस्टिया हैज टू बी द करेक्ट आंसर. डी आंसर जितने भी बच्चों ने किया है दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन 2015 से है और क्वेश्चन में पूछा गया है लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन, किसके अंदर लीव्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है स्पाइन्स में? दैट वी ऑल नो, सभी को पता है ये. अनियन, सिल्क कॉटन, ओपुंशिया, पी. These are the options in front of us and we all know कि अगर leaves के modification की बात चल रही है into spines, so leaves spines में किसके अंदर convert होती है? That you have to tell. Yes, definitely correct. We all know कि leaves का जो modification होता है, leaves they become modified into spines in case of, क्या अनियन में होता है, सिल्क कॉटन में होता है, ओपुंशिया में होता है या फिर पी में होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैज गॉट मॉडिफाइड लाइक दैट? सो वी ऑल नो दैट लीव का मॉडिफिकेशन होता है इन केस ऑफ ओपुंशिया. सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. सी हम यहाँ पर आंसर मार्क कर देंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2015. क्या क्वेश्चन है? एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक्साइल प्रेजेंटेशन
is present in? P. Argemone, dianthus, lemon. These are the options in front of us. And what should be the correct answer? Exile placentation. Exile placentation hai. So you have to remember, in case of lemon, exile placentation is actually found. So exile placentation का example lemon है, जैसे कि कुछ बच्चों ने ही आंसर किया था. So you have to remember that exile placentation example is lemon. Then coming to next question. अगला question है हमारे सामने from the year 2015. Keel is the characteristic feature of. कील जो सबसे छोटी पेटल्स होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है? जो हमारा एक ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है. इन दैट देयर इज अ स्टैंडर्ड लीफ, दैट इज वेक्सिलम, देन देयर आर लेटरल लीफ एंड देन देयर इज कील. सो व्हाट इज दिस कील? वेयर इज इट फाउंड? किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कील? एंड एज आई कैन सी हियर मेनी किड्स आर आंसरिंग दैट इंडिगोफेरा. सो दैट इज डेफिनेटली ट्रू. इंडिगोफेरा का ही एग्जाम्पल है. इंडिगोफेरा के अंदर ही कील होती है, विच आर द स्मॉल पेटल्स. Okay, so marking D and moving towards the next question. Now, the questions which are being asked here, they are very direct. Again and again I am repeating कि अगर आपने चैप्टर को एक दो बार अच्छे से पढ़ा है अभी रिसेंटली तो आप आंसर्स कर पाएंगे. एंड एग्जाम तक आपको एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स इस चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी बातें याद आएंगी. अदरवाइज आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे हर एक बात में कि वेक्सिलरी कौन सा वाला होता है, इम्ब्रिकेट कौन सा एस्टिवेशन होता है, वेलवेट में क्या होता है. इस तरह की कंफ्यूजन आना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है. सो दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स दे हैव टू बी रिवाइजेस एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स. जब आपकी एग्जाम आएगी उसके पहले 5-6 बार आपको ये पढ़ा होना चाहिए. Okay, so now when the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as vexillary, imbricate, twisted या फिर velvate. These are the options in front of us and let's see what all you have to answer. So अगर बात चल रही है सेपल्स और पेटल्स की जो ओवरलैप करती है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, जस्ट दे आर ओवरलैपिंग. So what do we call that? What kind of estivation this is? And as I can see, mostly kids are giving the right answer here. Yes, हम सभी को याद होना चाहिए कि ये जो ये जो estivation है, what kind of estivation it is? It's actually imbricate estivation. Imbricate estivation के अंदर overlapping तो होती है, but not in a particular direction. Okay, so ऐसे estivation को हम कहते हैं imbricate estivation. So imbricate has to be the right answer here. And then moving towards the next question, that is an example of edible underground stem. एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम कौन है? कैरेट है, ग्राउंडनट है, स्वीट पोटैटो है या फिर पोटैटो है. एंड आई होप एवरीवन नोज दैट एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम. बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए. इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, yes, definitely that's true. We all know edible underground stem कौन है? That is your potato. So D has to be the right answer here. D को हम मार्क कर देते हैं और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन हमारे सामने है from the year 2014 and the question is which one of the following statements is correct. अब आपको यहाँ से correct statement select करना है, ठीक है? And the options are: the seed in grasses is not endospermic. Mango is a parthenocarpic fruit. A proteinaceous aileron layer is present in maize grain. A sterile pistil is called as staminode. What you have to tell? You have to tell the correct statement out of these. Okay, and the options पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा that the options they are actually very very wrong. कुछ options बिल्कुल गलत दिए हुए हैं. And you have to select the correct one. Okay, correct आपको select करना है इनमें से. And सीधी NCERT की ही lines है, so as such कोई भी इसके अंदर problem नहीं होनी चाहिए. So let's see what all you have to answer for this particular question. Statement correct बताना है बच्चों, correct statement. So as we can see here, yes, definitely that's true. जितने भी बच्चों का कहना है यहाँ पर C, that is absolutely correct. देखो सबसे पहले the seeds in grasses are not endospermic. That is actually wrong because they have endospermous seeds. grasses के जो seeds होते हैं वो endospermous होते हैं. Then mango is a parthenocarpic fruit. Absolutely wrong. Parthenocarpic fruit नहीं है, mango is actually a true fruit. So that's why this is also wrong. Then a proteinaceous aileron layer is present in maize grain.
ओके, प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर होती है मेज ग्रेन के अंदर, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। मेज ग्रेन के अंदर अ प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज फाउंड। और स्टेराइल पिस्टिल को वी कॉल इट अ स्टैमिनोड। नो, जो स्टेराइल स्टामिन होता है उसको हम स्टैमिनोड कहते हैं। सो ये भी गलत है यहाँ पर। ओके, मैंगो पार्थेनोकार्पिक नहीं है, वी ऑल नो इट हैज गॉट सीड, सो दैट इज व्हाई सी हैज टू बी एक्चुअली द करेक्ट स्टेटमेंट। सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, सी हम सेलेक्ट करके लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है फ्रॉम द ईयर 2014। व्हाट द क्वेश्चन इज, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस ऑफ। प्लेसेंटा और पेरिकार्प किसके एडिबल पोर्शन है? एप्पल, बनाना, टमाटो या फिर पोटैटो, किसके अंदर हम प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं? दैट यू हैव टू टेल। एंड एज आई कैन सी ऑलरेडी आंसर्स आ चुके हैं। इतनी जल्दी आजकल कैसे आंसर्स आ रहे हैं? व्हेन जब तक मैं डी ऑप्शन पढ़ती हूँ उसके पहले से ही आंसर्स आई रिसीव हियर। सो इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट प्लेसेंटा और आपका पेरिकार्प दोनों किसके अंदर एडिबल होता है, तो 10 सेकेंड मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए देती हूँ। 10 सेकेंड्स तो मिनिमम आपको मिलेंगे ही क्वेश्चन के लिए। ओके, सो प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प दे आर द एडिबल पोर्शंस इन केस ऑफ टोमेटो, एज मेनी किड्स ऑलरेडी आंसर्ड। सो सी हैज टू बी द राइट आंसर हियर। तो हम सी को मार्क करके बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 2014, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम। जो एग्रीगेट फ्रूट होता है, हाउ इज दैट डेवलप? मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम, मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम, complete inflorescence, multicarpellary superior ovary. These are the options in front of you and you have to select the correct answer from here. Okay, so let's see what all you have to answer for this. Aggregate fruit कहाँ से डेवलप होता है? How is aggregate fruit developed? Yes, so as I can see, aggregate fruit, what is that? Aggregate fruit is that fruit जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे fruitlets होते हैं and that actually develops from multicarpellary apocarpus gynoecium. So B has to be the right answer over here. B is correct here. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चाइना रोज के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दैट यू हैव टू सिलेक्ट हियर। जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस या फिर वेलवेट एस्टिवेशन। अगर आपने हिबिस्कस को देखा है, चाइना रोज विच इज अ वेरी पॉपुलर फ्लावर, सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस करेक्टली। चाइना रोज के अंदर कैसे फ्लावर्स होते हैं? इन चाइना रोज what kind of flowers are found? That you have to select from here, and as I can see that many kids are actually giving the right answer here. चाइना रोज कैसे फ्लावर्स होते हैं चाइना रोज के अंदर? ओके, सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि जो चाइना रोज के फ्लावर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोमॉर्फिक तो एब्सोल्युटली नहीं होते हैं, ये सब एग्री कर सकते हैं इससे, ठीक है। चाइना रोज के फ्लावर्स होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, दैट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस रह गए सामने। ओके, नाउ आउट ऑफ दीज हाइपोगाइनस होते हैं या फिर एपिगाइनस, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है या फिर वेलवेट एस्टिवेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली यू हैव टू टेल। और इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड हिबिस्कस तो आपको समझ में आया होगा कि उसमें जो एस्टिवेशन है दैट हैपेंस टू बी ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ओके, ट्विस्टेड एस्टिवेशन मतलब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो ट्विस्टेड एस्टिवेशन और हाइपोगाइनस फ्लावर इज देयर, सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द राइट आंसर ओवर हियर। और बहुत सारे बच्चों ने, एज आई कुड सी आंसर किया था, विच इज डेफिनेटली ट्रू। सो सी इज करेक्ट आंसर, सी हम मार्क करके लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, जो अपना साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें जो मेन एक्सिस है दैट हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, it bears a solitary flower, has unlimited growth but lateral branches end into flower या फिर terminate in a flower, that you have to tell। और रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपको ये बातें याद होनी चाहिए। when we talk about साइमोज इन्फ्लोरेसेंस बेटा, so साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो मेन एक्सिस होती है what happens with that we already know। जो मेन एक्सिस होती है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में what happens with that, and as I can see many kids are answering the right, but इसमें mixed answers आ रहे हैं। साइमोज रेसिमोज में you don't have to be confused। Mixed answers I have received for this particular question।
सो यू शुड ऑल रिमेंबर कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो मेन एक्सिस होती है इट एक्चुअली टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, वो एक फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है एंड दैट इज व्हाई साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस कह सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो ग्रोथ है वो डेफिनेट है, दैट्स व्हाई। सो डी हैज टू बी द राइट आंसर हियर, तो हम डी को मार्क करके लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2013 अगेन, इन्फ्लोरेसेंस इन रेसिमोस इज रेसिमोसिस। अब आपसे रेसिमोस का एग्जाम्पल पूछ लिया है यहाँ पर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल, let's see what all you have to say for racemose inflorescence ka example, and many kids are actually answering it correctly. Inflorescence is racemose in. We all should remember that racemose inflorescence is actually found in, yes, as I can see बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो गए, बट वी शुड रिमेंबर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज एक्चुअली फाउंड इन सोयाबीन। सो डी हैज टू बी द राइट आंसर हियर, डी हम सिलेक्ट करके लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। और क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 2012। अब आपसे फाइलोड के बारे में पूछा है, हमने पहले डिस्कस किया था फाइलोक्लेड और फाइलोड के बीच में क्या डिफरेंस है। नाउ दे आर आस्किंग यू अबाउट फाइलोड। फाइलोड इज प्रेजेंट इन एस्पैरागस, यूफोर्बिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया या फिर ओपुंशिया। जो बच्चे ओपुंशिया कह देंगे वो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे फिर से, बट एक्चुअली हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है फाइलोक्लेड और फाइलोड के बीच में डिफरेंस। सो आई डोंट थिंक कोई भी बच्चा यहाँ पर ओपुंशिया कहेगा। अब तो मैंने बोल ही दिया, आप तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। यस, एज आई कैन सी, yes Chiranjeevi, I can definitely see your answer and your answer is also correct. We all know phyllodes that is present in, phyllodes किसके अंदर present होता है, it is present in Australian acacia. In Australian acacia, phyllodes is there. So C has to be the right answer. Now moving towards the next question. Vexillary estivation is characteristic of the family. Vexillary estivation किस फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? फैबेसी, एस्टरेसी, सोलेनेसी या फिर ब्रेसिकेसी। What is actually vexillary estivation? किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? That you have to tell here. And estivation पे based now you can see कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, right? Vexillary estivation हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, इस सेशन में भी हमने पढ़ लिया है कि vexillum that means standard petal and vexillary estivation is actually the characteristic feature of Fabaceae family. Vexillary estivation Fabaceae family का ही characteristic example है. So that is why A has to be the right answer here. Then A को हम मार्क करके let's move towards the next question. अगला question है from the year 2012 and question is साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब आपसे साइमोस का एग्जाम्पल पूछ लिया, सीधे सीधे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स याद रखना चाहते हो अगर, सो यू हैव टू रिवाइज, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेंगी चीजें। अगर एग्जाम्पल्स याद रखने हैं तो रिवीजन इज द ओनली की, इसके अलावा और कोई भी ट्रिक नहीं होती है। रिवीजन इज द ओनली ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग एग्जाम्पल्स। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आपके सोलेनम के अंदर होता है, सो ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई डिस्कस करने की आज तक जरूरत है नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब फिर से पूछ लिया आपसे प्लेसेंटेशन इज टोमेटो एंड लेमन इज, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, सबको याद है बात। एक क्वेश्चन में जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हमने लेमन का प्लेसेंटेशन मैच किया था, इफ यू ऑल रिमेंबर। लेमन के अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन हमने मार्क किया था, तो वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया, टोमेटो और लेमन में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, तो हम कहेंगे एक्साइल। इसके पहले पूछा था एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है, उसमें हमने लेमन मार्क किया था। सो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज हियर, राइट? सो दैट्स व्हाई डी हम मार्क कर देंगे एंड देन वी विल मूव ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 2012। Gynoecium consists of many free pistils in the flower of. Gynoecium के अंदर बहुत सारी free pistils होती है, किस flower के अंदर? फिर से example based question and as I can see only a few have answered. So what are you all doing बेटा? क्या बात है, examples आप लोगों को याद नहीं हुए हैं अभी? Recently we have completed the chapter, तो इतना consider हो सकता है, लेकिन इसके बाद
अगर सेम क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, सो यू शुड बी एबल टू आंसर देम करेक्टली, और ऐसे एग्जाम्पल बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी, यू शुड बी एबल टू आंसर. ओके, सो दैट इज़ वाई आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, रिवाइज करने हैं. बिना रिवीजन के आपको याद नहीं रहने वाली है बातें. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप चाहते हो अच्छे से स्कोर करना, अगर आप चाहते हो सारे एग्जाम्पल्स को याद रखना और करेक्टली आंसर करना, सो दैट फॉर दैट रिवीजन इज़ द की. रिवीजन आपको बिल्कुल रेगुलरली करना ही पड़ेगा इस चैप्टर में. ओके, एंड एज आई कैन सी सम मोर किड्स हैव आंसर्ड नाउ, और कुछ बच्चों ने आंसर किया है इसके लिए. सो एग्जाम्पल्स बेटा अगर याद नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने कंसीडर किया इसलिए आज तो मैं कंसीडर कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद अगर सेम चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू शुड बी एबल टू आंसर प्रॉम्प्टली. ओके, सो गाइनोशियम फ्री पिस्टल्स होते हैं किसमें? माइकेलिया के अंदर. सो दैट्स व्हाई डी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का. द कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू. ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, राइट? जो एडिबल पार्ट होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं कोकोनट में, व्हाट इज दैट? दिस वी हैव ऑलरेडी डन. फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना? सभी को याद है. Everyone has actually answered endosperm. A is the right answer here. Endosperm. This is actually repeated question. Okay. Then coming to the next question in front of us. अगला question है a drupe डेवलप्स इन. ड्रूप के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिए हुए हैं. जो आपका फ्रूट वाला पोर्शन है, देयर दे हैव गिवन द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रूप, एंड एज ऑल ऑफ यू कैन सी, एज आई कैन सी द आंसर. यस, 5 more seconds बेटा, सभी को आंसर देना है. अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सब बता सकते हैं. ड्रूप डेवलप्स इन. आई एम एक्सपेक्टिंग everyone can answer this particular question correctly. Drupe जो है वो किसके अंदर डेवलप होता है? As we know, drupe develops in mango. So A has to be the right answer here. Mango, coconut हमारी NCERT में ही आंसर एग्जाम्पल्स दिए. So A has to be the right answer. Then next question from the year 2011. क्या है क्वेश्चन में? Which one of the following statements is correct? अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ओके, टमाटो के अंदर फ्रूट कैप्सूल होता है. Seeds of orchid have oil-rich endosperm. Placentation in primrose is basal. या फिर flower of tulip is modified shoot. And you have to tell the correct statement here. Okay, let's see who is able to answer this correctly. Correct statement बताना है. Okay. Very good, very good. So as we all know that correct statement की अगर बात चल रही है यहाँ पे, so correct statement क्या है? Firstly, टमाटो में फ्रूट कैप्सूल होता है क्या? No, not at all. Seeds of orchids, उनके अंदर ऑयल रिच एंडोस्पर्म होता है क्या? नहीं. प्राइम रोज में प्लेसेंटेशन बेसल नहीं है. देन फ्लावर ऑफ ट्यूलिप, क्या वो मॉडिफाइड स्टेम है? यस, दिस इज डेफिनेटली ट्रू. दे आर मॉडिफाइड शूट एक्चुअली. ओके, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट. सो डी इज एक्चुअली करेक्ट हियर. डी हमारा करेक्ट है. डी मार्क करके लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है 2011 से. क्वेश्चन में पूछा है फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन. अब आपसे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में पूछा है. टमाटो, मस्टर्ड, डटूरा या गुलमोहर. You all should know zygomorphic flower, that means bilateral symmetry किस फ्लावर के अंदर होती है? बहुत ही पॉपुलर है, आप सभी ने देखा होगा ये फ्लावर. Everyone must have seen this. और अगर आपने फ्लावर देखा है तो आप आंसर भी आसानी से कर दोगे, आपको याद रहेगा. सो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल दैट इज गुलमोहर. गुलमोहर का फ्लावर अगर आपने देखा है, इट हैज गॉट एक्चुअली वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है इस तरह से, एक वेक्सिलम, देन देयर आर लेटरल एंड कील. इस तरह का फ्लावर इज फाउंड इन केस ऑफ गुलमोहर. सो गुलमोहर जितने भी बच्चों ने आंसर किया है दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. फ्रॉम द ईयर, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2011. The ovary is half inferior is. फिर से आपसे पूछ लिया गया है हाफ इंफीरियर ओवरी किसके फ्लावर में होती है. एंड वी ऑल नो, इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था हाफ इंफीरियर ओवरी में, तब हमने प्लम कहा था. सो प्लम, पीच, दोनों के ही अंदर हाफ इंफीरियर ओवरी होती है. सो दैट्स व्हाई पीच इज द आंसर दैट वी विल सिलेक्ट हियर. एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नाउ सी, आपको प्लेसेंटेशन के डायग्राम्स दे दिए हैं. एज आई वाज टेलिंग यू, डायग्राम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट
द प्लेसेंटेशन इन डायंथस, डायंथस के अंदर किस तरह का प्लेसेंटेशन होता है, दैट यू हैव टू सिलेक्ट हियर। ओके, ऑल राइट, एंड एज वी कैन सी, ओके, सो इसके लिए सभी ने एक ही अभी तक कॉमन आंसर भेजा है। एवरीवन हैज सेंड द कॉमन आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टिल नाउ। And as we all know that this kind of placentation, dianthus की अगर placentation की बात चल रही है, so what kind of placentation is seen in dianthus? That is this one. Okay, so now moving towards the next question. अब आपसे फिर से फ्लोरल फॉर्मूला पूछा है बेटा, यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला चिली का, चिली के लिए फ्लोरल फॉर्मूला दे हैव आस्क्ड यू, एंड फ्लोरल फॉर्मूले आपके सामने हैं, एंड यू हैव टू सिलेक्ट फॉर चिली। What should be the correct one? ये हम पहले भी फ्लोरल फॉर्मूले मैच कर चुके हैं, सो आई होप यू ऑल मस्ट रिमेंबर दीज। चिली का फ्लोरल फॉर्मूला, what should be the correct floral formula for chili? As we can see here, we will have to see आपका कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में फ्यूजन होना चाहिए चिली के अंदर, एंड देयर शुड बी your corolla, उसके अंदर 5 petals and they should be fused. So according to that, the correct answer should be this, क्योंकि इसमें देखो calyx is also shown to be fused, so this has to be the right answer. B has to be the right answer here. चिली के लिए फ्लोरल फॉर्मूला यही है, एंड इस तरह से कुछ एक बातें आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप आंसर कर पाओगे। सो B has to be the right answer here. Then अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू। स्वीट पोटैटो किसका होमोलॉग है? पोटैटो, कोलोकेशिया, जिंजर या फिर टर्निप, that you have to tell here. Okay, and 10 seconds for this question. Sweet potato we just discussed, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि it's a modification of adventitious root, root का modification है, तो आपको वही बताना है कि इनमें से कौन मॉडिफिकेशन तो रूट का है लेकिन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी का मतलब होता है होमोलॉगस। दैट मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस, सो दैट यू हैव टू सिलेक्ट हियर। Okay, and let's see what all you have to answer for this particular question. And as I can see here, many kids have actually given the right answer for this question. बिल्कुल सही आंसर आया है, because we all know कि जब बात हो रही है आपके स्वीट पोटैटो की, so स्वीट पोटैटो किसके लिए होमोलॉगस है? It's homologous to turnip. टर्निप का होमोलॉग है स्वीट पोटैटो। टर्निप और स्वीट पोटैटो बोथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, लेकिन स्वीट पोटैटो का काम क्या होता है? स्वीट पोटैटो इज ऑल्सो यूजफुल इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्टोरेज, लेकिन टर्निप का काम सिर्फ स्टोरेज होता है। सो इस तरह से दे आर डिफरेंट, सो दैट्स वाई डी हैज टू बी द राइट आंसर हियर। सो हम डी मार्क करके लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2011 से, एंड द क्वेश्चन इज वर्ल्ड सिंपल लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। ऑप्शंस आर कैलोट्रोपिस, नीम, चाइना रोज, एल्स्टोनिया। दीज आर द ऑप्शंस, एंड आपको क्या बताना है? वर्ल्ड सिंपल लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। 2011 का क्वेश्चन, एंड एज आई कैन सी हियर, okay, so world simple leaves and reticulate venation, they are present in mostly the answers that I am receiving here, they are actually correct. Yes, so we all know Estonia is the example of such one which is having world simple leaves and reticulate venation, so that's why D हम select करेंगे. And moving to the next question from 2010, which one of the following is xerophytic plant in which the stem is modified into flat green and succulent structure? We all know यहाँ पर बात चल रही है फाइलोक्लेड की। फाइलोक्लेड होता है ओपुन्शिया में, so ओपुन्शिया we will select here, and then we will move towards the next question. हम move कर जाते हैं अगले question पर, और next question is given here, that is from 2010. In unilocular ovary with a single ovule, the placentation is marginal, basal, free central या फिर axile. एक सिंगल ओव्यूल जिसके अंदर होता है, what do we call it? We all should remember this kind of placentation, हम सभी ने देखा हुआ है, this kind of diagram was there. एक ही ओव्यूल होता है, so उससे ही समझ में आ जाता है, as I can see here. Yes, we all know that if there is unilocular ovary with one single ovule, yes, so definitely mostly the answer that I have received here is correct. Basal placentation के अंदर there will be one ovule only. Then अगला question है कील.
फिर से क्वेश्चन आ गया है कील. कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर गुलमोहर, कैसिया, कैलट्रोपिस, बीन. इसमें से किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपके कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, एंड वी ऑल नो दैट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बीन. बीन के अंदर इस तरह का फ्लावर देखने को मिलता है. सो बीन वी विल सिलेक्ट हियर. डी वी हैव टू सिलेक्ट. डी आंसर इज डेफिनेटली ट्रू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर्स ऑफ. हाफ इंफीरियर ओवरी इनमें से किस में होती है? गुआवा, प्लम, ब्रिंजल या फिर क्यूकम्बर. ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन. यस डेफिनेटली, अभी हमने डिस्कस किया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज प्लम. ओके, सो बी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. सो बी हम सिलेक्ट करेंगे. एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निकल टर्म विच इज यूज्ड फॉर एंड्रोशियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज, दैट इज हिबिस्कस, इज मोनो एडल्फस. आपके लिए किसके बारे में पूछ रहे हैं? एंड्रोशियम के बारे में. ठीक है, डाई एडल्फस होता है, पॉलीएंड्रस होता है या फिर पॉली एडल्फस होता है. एंड फॉर दैट यस डेफिनेटली करेक्ट. बहुत ही जल्दी लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आंसर्स आ रहे हैं आज, तो क्या बात है. बहुत सारे बच्चे एक्चुअली पढ़ के आए हैं, बट आज का पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली इट इज लेस एक्टिव है आज क्लास में बच्चे. मतलब अभी अभी चैप्टर हुआ है तो शायद रिवीजन नहीं किया होगा, इस वजह से बातें याद नहीं आ रही है. इज दैट ट्रू? यस. ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से ये क्वेश्चंस को देखोगे या फिर कोई नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सो दैट टाइम यू शुड बी श्योर दैट यू आंसर देम करेक्टली. यू शुड बी एबल टू आंसर देम करेक्टली, बिकॉज आपको ये चैप्टर को यू डोंट हैव टू टेक इट लाइटली. ओके, सो एज आई कैन सी हियर आपसे चाइना रोज के बारे में पूछ रहे हैं, एंड्रोशियम के बारे में पूछा गया है, एंड उसके अंदर मोनोएडल्फस एंड्रोशियम इज फाउंड. सो दैट इज वाई ए वी हैव टू सिलेक्ट. Okay, then coming towards the next question. अगला क्वेश्चन है estivation of petals in the flower of cotton. कॉटन के अंदर किस तरह का estivation होता है बताओ इसमें से. which kind of estivation is found in case of cotton? Is it vexillary? Is it imbricate? It is velvet या फिर twisted? किस तरह का estivation होता है? ये diagrams दिए हुए आपके सामने. And what are you going to select for cotton? Okay, 5 more seconds for everyone else. You have 5 more seconds to answer this question. And as I can see, बहुत ही कम बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया actually. Okay, so cotton के अंदर अगर आपसे estivation पूछा जा रहा है, so it has to be this. This is actually velvet estivation, and cotton में this kind of estivation is only found. So that's why D has to be the right answer here. तो हम D select करके आ जाते हैं अगले question पे. The scutellum observed in a grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in other monocotyledons? जो scutellum होता है वो एक्चुअल में क्या होता है व्हीट और मेज में, किससे कंपेयर कर सकते हैं? ये फिर से रिपीट हुआ है, तीसरी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, राइट? एवरीवन नोज कि कॉटिलिडॉन को ही हम स्क्यूटेलम कहते हैं मेज और व्हीट में. सो ए हैज टू बी द राइट आंसर. दिस इज रिपीटेड, दैट्स व्हाई हम जल्दी से ए मार्क कर रहे हैं. एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सारे बच्चों ने एक्चुअली बिल्कुल सही आंसर दे भी दिया था, बट वो रिपीटेड था, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट मार्किंग एंड मूविंग फॉरवर्ड. द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोयाबीन. अब आपसे सोयाबीन का फ्लोरल फॉर्मूला पूछा है. फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस अभी तक पूछ लिए गए हैं, राइट? सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस. ओके, सो आपको याद होनी चाहिए कंडीशन इन केस ऑफ सोयाबीन. ओके, so many kids are giving different answers, अलग अलग आंसर सब दे रहे हैं, because floral formula जो आपके सामने लिखा है confusing है. ध्यान से देखो उसको, you have to see it very carefully. Okay, alright, so सोयाबीन की बात चल रही है बेटा यहाँ पर. What kind of floral formula it should be having? So अगर आपको याद है कि सोयाबीन के अंदर जो कोरोला है पेटल्स में 1+2+2 and that is fused, ये कंडीशन याद रख लो आप आपके सोयाबीन के फ्लोरल फॉर्मूला के लिए. सो आपको क्लियर रहेगा दिमाग में दैट सी हैज टू बी करेक्ट. यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है विच इज रॉन्ग, सो दैट्स वाई सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर. बहुत से बच्चों ने ए और सी में कंफ्यूजन दिखाया, सो सी हैज टू बी द राइट वन. इस तरह से हर एक फ्लोरल फॉर्मूला में ना एक कैरेक्टरिस्टिक याद रख लो जिससे कि आप करेक्टली आंसर कर पाओ. सी हैज टू बी राइट हियर. देन अगला क्वेश्चन है 2010 से. कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स and select the right option
फॉर 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर। ठीक है, स्टेटमेंट्स दिए हुए आपको यहाँ पर और आपको 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। ओके, दीज आर दी स्टेटमेंट्स एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू आंसर दिस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑल राइट, 10 सेकेंड्स फॉर ऑल ऑफ यू, 10 सेकेंड्स, सभी को 10 सेकेंड्स मिलेंगे। आपको 4 स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और फिर उसमें से ये बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड 10 seconds for all of you, as I can see here that some kids have answered. 5 more seconds बच्चों, 5 सेकेंड और। all right, so as I can see mostly जो आंसर्स आए हैं वो कॉमन है। Let's discuss what should be the correct answer. Firstly, vexillary estivation में the large posterior petal is called as standard, सही है। 2 lateral होती है, उनको wings कहते हैं, 2 small होती है anterior, उन्हें हम कील कहते हैं, which is definitely true। ठीक है, फिर फ्लोरल फॉर्मूला फॉर लिलिएसी, इट्स दिस। हमने लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला पहले भी देखा था, पेरियांथ होता है उसमें, which is actually true। पेरियांथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिलिएसी का ही फ्लोरल फॉर्मूला है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। इन पी फ्लावर ऑफ द स्टैमेन्स आर मोनोएडल्फस, नो, ये भी हमने डिस्कस किया था शुरुआत में, पी के अंदर डाइएडल्फस होता है स्टैमेन। ओके, देन द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर सोलेनेसी इज दिस। सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस 1 and 2, दैट मीन्स बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चों ने बी आंसर किया है, दैट्स वेरी गुड। नाउ here we have actually completed the questions from morphology of flowering plants, and what I have seen today is the participation was comparatively less today. So morphology एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जिसके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा है। अब आपको ऐसे चैप्टर्स के साथ डील करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, अदरवाइज इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप टर्मिनोलॉजी भूल जाओ, डेफिनेशन भूल जाओ, डायग्राम्स कौन से, किसका डायग्राम है, ये सारी बातें आप जब बार बार देखते रहोगे ना तभी आपको याद रहेंगी, अदरवाइज इट्स वेरी ऑब्वियस दैट यू विल फॉरगेट थिंग्स। सो दैट्स वाई फॉर चैप्टर्स लाइक दिस यू हैव टू रिवाइज देम प्रॉपरली। आपको अच्छे से रिविजन करके यू हैव टू अटेम्प्ट देम। ओके, सो एक बार फिर से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इससे रिलेटेड, आप फिर से एक बार रिवाइज करिए चैप्टर को एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन आप ये चैप्टर को प्रिपेयर करके रखना, अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और फिर उसके भी PYQ सॉल्व करेंगे। टिल देन यू ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय।